Jai Hind, Vande Mataram, friends. Now in science, in biology, we are in the apex of the topic in life process. You can say the reproduction is the apex of life process. ગુજરાતીમાં કેવું હોય તો પુનરુત્પાદન એ જીવન પ્રક્રિયાની ટોચ છે. So ultimate thing is that why in life process the reproduction is very essential place. What is the reason behind that? So that's questions answer we will try to find in this lecture, that how do organism reproduce, or we can say the reproduction in organism. So first thing is that what is the necessity of reproduction? The necessity of reproduction is based on one quality of person, and that is the desire to live. जीने की अदम्य इच्छा, जिजीविषा, ये एक ऐसा कॉज है बच्चों जो रिप्रोडक्शन को कंपेल करता है. Why? Reason is that each and every organism who has come in this earth, it is damn sure that his lifespan is limited. Okay, and there is no place of perpetuity. Nobody one can claim in this organism, in this earth, that I will be survived till long. I am Ajar, I am Amar. Nobody can say. And due to this limitation, due to the limitation of lifespan, each and every organism want to survive. Okay, and he can survive himself in the form of reproduction. तो अब रिप्रोडक्शन को आप एक जरिया बोल सकते हो अपने आप को एक लंबे समय तक का जिंदा रहने का एक तरीका, जहाँ पर आपकी मौत होने के बावजूद भी आपके बॉडी के अंश किसी और रूप में इस धरती पर अस्तित्व में रहते हैं. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, यानी कि भले आज मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए, लेकिन वो मेरे पिताजी में विद्यमान थे और आज मुझ में भी विद्यमान है, और मेरी कई आगे की पीढ़ियां वो इसी तरह से मुझ में विद्यमान है. ओके, और यही एक कारण है कि रिप्रोडक्शन नॉट ओनली इज नेसेसिटी बट इट इज अ पार्ट ऑफ इवोल्यूशन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये एक उत्क्रांति की एक बेसिक प्रक्रिया और ज़रूरत है, जहाँ पर हर कोई अपने अस्तित्व को बनाए रखता है. अस्तित्व मिटता नहीं है, बराबर है. तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज दैट all living organisms grow old with time and ultimately die. Every living organism remain alive on the earth for limited period of time, and it's a universal truth, and then die. So new organisms have to produce to place off those who die, because each and everyone want to survive. Okay, this can be achieved by the process of reproduction, in which new organisms are produced from the existing organism in order to maintain the life of their species on the earth.
अपनी प्रजाति के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन इज वेरी एसेंशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस. Now question has raised, what is reproduction? So the life process which help animal to keep alive. Every organism remain alive for a certain limited time and then die. The production of new organism from the existing organism of the same species is known as reproduction. Means अपने ही जैसे दूसरे सजीव को जन्म देने की जो प्रक्रिया है, दैट इज द रिप्रोडक्शन. इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य से मनुष्य ही पैदा होगा, बिल्ली बिल्ली के बच्चे को ही जन्म देगी, गाय से गाय का बच्चा ही पैदा होगा, घोड़े से घोड़े का बच्चा ही पैदा होगा, सांप सांप को ही जन्म देगा. यानी अपने जैसे दूसरी एक कॉपी को क्रिएट करना, दैट इज द रिप्रोडक्शन. ओके, सो रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. मैंने बोला ना, दिस इज द अपेक्स ऑफ लाइफ प्रोसेस. हमने लाइफ प्रोसेस की शुरुआत कहाँ से की थी? न्यूट्रिशन से की थी. और एंड कहाँ पे आ रहा है इसका? रिप्रोडक्शन पर आ रहा है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एबिलिटी टू reproduce more member of the same species. Thus reproduction is indispensable for the survival of the species. यानी किसी भी प्रजाति के अपने आप को सर्वाइव करने के लिए एक ये बहुत इंडिस्पेंसेबल यानी असेंशियल, जरूरी, महत्वपूर्ण जो है ये एक घटना है. द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन मेक्स थिंग्स safe against the continuity of life. Reproduction gives the surety that life is continue, there is no end. अब दूसरा सवाल पैदा होता है यहाँ पे. ये तो हमने चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया. हाउ ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ themselves. अपने ही जैसे दूसरे स्ट्रक्चर की कॉपी कैसे हो जाती है? अच्छा, कुछ वेरिएंस देखने को मिलते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ऐसा होता है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो यहाँ पे इसका जवाब ये है, ऑर्गेनिज्म ऑफ द स्पीसीज हैव सिमिलरिटी बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन आर सिमिलर. इन ऑर्डर टू रिमेन सिमिलरिटी इन बॉडी डिजाइन, द ब्लूप्रिंट ऑफ द डिजाइन शुड बी सिमिलर. यानी कि अगर आपको किसी चीज़ की जेरोक्स बराबर निकालनी है तो जिस पेज से जेरोक्स निकालनी है वो पेज भी तो सिस्टमेटिक होना चाहिए. देयर शुड नो डिफेक्ट इन दैट. अगर डिफेक्ट होगा तो क्या होगा? जो कॉपी आएगी वो भी कैसी आएगी? डिफेक्टिव आएगी. ओके, सो इन लास्ट क्लास वी स्टडीड दैट द क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस विच इज स्टोर्ड इन डीएनए. अब न्यूक्लियस बच्चों दो टाइप के होते हैं, एक नॉर्मली सेल में अवेलेबल, दूसरे रिप्रोडक्टिव सेल में अवेलेबल. तो उनके जो सेल है उसकी न्यूक्लियस है, उसमें स्पिंडल शेप में एक स्ट्रक्चर मिलता है विच इज कॉल्ड द क्रोमोसोम, और उसके अंदर एक मटेरियल होता है विच इज नोन एज द डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ही एक ऐसा कंटेन है जो अपने अंदर बहुत सारे शुगर, प्रोटीन और अलग अलग तरीके के मटेरियल जो एकदम जटिल फॉर्म में मिलते हैं, बराबर है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिलते हैं, वही जो है A1 जनरेशन टू दूसरे जनरेशन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करने का काम करते हैं. ओके, सो दिस डीएनए, if the information is changed, then there will be change in protein which eventually leads on the alert by design. तो डिज़ाइन में कब चेंज आएगा? अगर डीएनए के प्रोटीन में अगर कुछ बदलाव आ रहा है, वो आपके हाथ में नहीं है, वो इंसान के हाथ में नहीं है. इट इज प्योरली डिपेंड ऑन द नेचर, वो प्रकृति के हाथ में. द क्रिएशन ऑफ अनदर कॉपी ऑफ द सेल इज द बेसिक इवेंट इन द रिप्रोडक्शन. द सेल आर डुप्लीकेटेड बाय डुप्लीकेटिंग डीएनए. तो जब रिप्रोडक्शन में जो है, जब ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं और एक नए सेल को अपने में से ही जन्म देते हैं. ओके, हेंस टू प्रोजेनी calls the producers. Thus two cells from
आर सिमिलर बट दे आर एब्सोल्युटली आइडेंटिकल। बराबर, सिमिलर हैं लेकिन आइडेंटिकल है। दिस डिपेंड अपॉन हाउ एक्यूरेटली द सीक्वेंस इंफॉर्मेशन हैज बीन कॉपीड। Although copy error is rare event, happens in bring about the changes in the characteristics. When the changes are not compatible with cellular system, okay, halting important function cell cannot survive. The natural process of evolution is outcome to show, but definite changes that have taken place over a year of evolution era, and this evolution process I am not going to touch here. This one I will explain you in next chapter, because evolution is also associated with reproduction. Now, understanding this much, one more question has come in the mind, that the importance of variations. बराबर है। देखो, हम लोग सबके सब एक ही प्रजाति के हैं, मनुष्य, होमोसेपियन, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कितना वेरिएशंस देखने को मिलेगा। एक ही फैमिली के अंदर एक ही माता पिता से पैदा हुए भाई बहन भी एक जैसे दिखते नहीं है, उनमें भी इतनी वेरिएशंस देखने को मिलती है। बराबर है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, क्या कारण है उसका? तो उसका कारण इतना ही है कि हर एक डीएनए की अपनी एक स्पेसिफिक ब्लूप्रिंट होती है जो दूसरे से मैच करती नहीं है। तो जस्ट सोचो, जिस कुदरत ने इस चीज को डेवलप किया, उसने कितना सोच समझ के जो है इसको क्रिएट किया होगा। बराबर है। द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नीचेस और द इकोसिस्टम इज ऑल्सो रिप्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन द कंसिस्टेंसी। मतलब हमारे साथ में प्रकृति भी उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती है हमारे स्ट्रक्चर को डेवलप करने में। बराबर। द डीएनए कॉपिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन फीचर्स, दस द रिप्रोडक्शन इज लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। द नीचेस कैन चेंज बिकॉज द कॉज ऑफ देयर चेंज आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये जो डीएनए में जो बदलाव आता है, बराबर, वो बदलाव इंसान के खुद के बस की बात नहीं है, वो अपने एफर्ट से उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता है। सच चेंजेस आर टेम्परेचर ऑफ द अर्थ विच कैन गो अप और डाउन, वेरिएशन इन वाटर लेवल, और दे कुड बी moderate heats. We will see some example. Suppose population is reproducing organism was suited to particular niche, and if there was a drastic change in niche, the population can be wiped out. In a few individuals of this population, if there were some variations present, then there would be a few change for them to survive. Thus, if there was a population of bacteria living in water is moderate temperature, because of the global warming, the water temperature were to be increased, may be possible so many bacteria will be die, but bacteria who will be able to adjust with the temperature, definitely they will survive and they will lead their generation ahead. Okay, but few temperature resistant bacteria would survive and grow further. The variation is useful for the survival of species. तब इतना पढ़ने के बाद में बच्चों, इतना अंडरस्टैंड करने के बाद में जो अगला सवाल पैदा होता है, दैट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अंडर ऑर्गेनिज्म। तो इसके जो है बच्चों दो पार्ट है, वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म है बच्चों जो डायरेक्टली मेल फीमेल के कांटेक्ट के बिना बहुत अलग अलग तरीकों से अपने जनरेशन को आगे लाने का काम करते हैं या पैदा करने का काम करते हैं, दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेसिकली आप लोगों को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अमीबा है, पैरामीशियम है, बराबर है, यूग्लिना है, इन सब में आपको देखने को मिलेगा। सर्टेन काइंड्स ऑफ म्यूकर्स हैं, इन सब में आपको देखने को मिलेगा, बराबर है। तो इनमें जो पहला जो टाइप है वो है फीजन। फीजन में ऐसा होता है कि जो क्या बोलते हैं आप, पेरेंट अमीबा होते हैं,
तो उनको जब ऐसा लगता है कि भाई अब रिप्रोडक्शन करना है तो अपने बॉडी को ऑटोमेटिकली उसमें सेल डिवीजन होना शुरू होता है, और बॉडी जो है धीरे धीरे उसका जो साइटोप्लाज्म है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड होता है, और 1 से 2 अमीबा जो है डेवलप हो जाता है, बराबर है। इसी में जो है अगला भी एक और तरीका है, दैट इज अ मल्टीपल फ्यूजन। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आउटर एटमॉस्फेयर होता है वो रिप्रोडक्शन के लिए फेवरेबल नहीं होता है, सो ड्यूरिंग दैट टाइम अमीबा क्या करता है, अपने बॉडी के चारों तरफ एक कोट बना लेता है और अंदर ही अंदर अपने सेल को डिवाइड करता जाता है। जैसे ही उसे लगता है कि भाई बाहर का एनवायरनमेंट उसके रिप्रोडक्शन के फेवरेबल में, इमीडिएटली बाहर का जो कोट है वो ब्रस्ट आउट होता है और बहुत सारे डॉटर अमीबा जो है रिलीज होते हैं। लाइक दैट वे मल्टीपल फ्यूजन अमीबा में देखने को मिलता है। एक और टाइप है रिप्रोडक्शन का इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स में, दैट इज द फ्रेगमेंटेशन, यानी खंड पद्धति, यानी उसमें से एक ही प्लांट के अगर 2 टुकड़े हो जाए तो दोनों के दोनों अपना इंडिपेंडेंट लाइफ जीना शुरू करते हैं। खास करके स्पैरो वगैरह में ये प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज योर रीजनरेशन। हाइड्रा और प्लेनेरिया जैसे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, बराबर है, उनमें जो है बॉडी का पर्टिकुलर पार्ट जो है वो ब्रेकअप होता है और इंडिपेंडेंटली एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होना शुरू करता है। एक और तरीका है, दैट इज द बडिंग। बडिंग में जो है बॉडी का कोई पर्टिकुलर पार्ट स्वेल करता है और धीरे धीरे जो है वो जो मदर बॉडी है उसमें से सेपरेट होता है और एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीता है। म्यूकर जैसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, बराबर, उसमें स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। तो ये तो बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हम लोगों ने बात की। इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन मैंने आप लोगों को बताया, रीजनरेशन मैंने आपको, बडिंग भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये तो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में था। प्लांट के अंदर अगर आप देखो तो जैसे ब्रायोफिलियम है, बराबर, उसमें कोई सीड वगैरह नहीं होता, उसका लीफ में से ही दूसरा जनरेट हो जाता है प्लांट। तो दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। और पोटैटो अगर आप देखो, बराबर है, तो उसमें जो है ऊपर कलियां निकल के आती है, उसमें से जो है दूसरा पोटैटो डेवलप होना शुरू होता है। दैट इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। फिर ये तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन था। इसके अलावा आर्टिफिशियल प्रोपगेशन भी होता है। आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग अपने घर में गुलाब वगैरह की कलम लगाते हैं या जैस्मीन वगैरह है, बराबर है, उसको अगर आप उसके एक पार्ट को अगर आप जमीन में दबा दो, बराबर है, और थोड़े दिनों के बाद में जो है देखोगे तो उसमें से रूट निकल आएंगे और उसको जो ओरिजिनल प्लांट है उसमें से कटिंग कर दोगे तो वो इंडिपेंडेंट लाइफ जिएगा। इसी तरह से ग्राफ्टिंग एक और आर्टिफिशियल तरीका है रिप्रोडक्शन का, जहाँ पर एक ही जात के अलग अलग प्लांट को, बराबर है, उसके सेक्शन और स्टॉक को इस तरह से ज्वाइन किया जाता है कि उसमें से एक नया प्लांट डेवलप हो। ये जितने भी हम लोगों ने अभी अंडरस्टैंड किए बच्चों, दैट ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ तो यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल और प्लांट हम लोगों ने क्लियर किया। अब हम लोग जो अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन प्लांट एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन एनिमल। ओके, फर्स्ट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम इसके बारे में पहले अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद में हम लोग जो है प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हिबिस्कस के थ्रू, शू फ्लावर, उसके थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे एंड देन हम लोग ह्यूमन बीइंग के रिप्रोडक्शन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज हम लोग यहाँ तक रखने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट में प्लांट में रिप्रोडक्शन सेक्सुअली एंड एनिमल में ह्यूमन बीइंग में, एंड व्हाई वी हैव टेकन ह्यूमन बीइंग, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सो सी द इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं फिर से याद दिला देता हूं कि जहां पर मेल और फीमेल डायरेक्टली कांटेक्ट के थ्रू
एक दूसरे के साथ में सेक्सुअली जो है रिलेशन डेवलप करते हैं और नए ऑफस्प्रिंग को बर्थ देते हैं, दैट इज कॉल्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज मैनी एडवांटेजेस। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब जो आने वाला नया बच्चा है, वो भ्रूण, बेबी, हैव जेनेटिक वेरिएशंस in population. Sexual reproductions lead to greater variety. The species of plant and animal can adapt quickly the changing environment. Those individuals which are more adapted to change will survive and produce sexually. In the offspring, thus sexual reproduction shows the diversity of character and providing genetic variance. Means जो भी न्यू जनरेशन है, नई ऑफस्प्रिंग, नई संतति है, उसके अंदर आपको बहुत से बदलाव देखने को मिलेंगे, परिवर्तन देखने को मिलेंगे। In origin of new species, the sexual reproduction play an important role. The genetic variations lead to the important role. These genetic variations lead the evolution in various species in the better organism. In sexual reproduction, the genetic material, that is DNA, from male and female gametes combined to zygote, but the amount of DNA in zygote does not get double. देखो दोनों में से टोटल 23 रंगसूत्र मिलते हैं, क्रोमोसोम्स मिलते हैं, बराबर है। अब एक अगर ऐसे देखा जाए तो टोटल जो है 46 होता है, लेकिन उसकी जोड़ी तो जो है 23 की 23 ही रहती है। The male and female gamete contain only the half of the number of chromosomes as compared to the normal body cell of the organism. During sexual reproduction, male gamete fuse with the female gamete. The zygote achieve normal amount of DNA or normal number of chromosomes in it. For example, the human ovum has 23 chromosomes. Ovum means the female reproductive cell, and the sperm, that is the male reproductive cell, have the 23 chromosomes. Thus, when the sperm and the ova combined during the fertilization, the zygote form have the 23 plus 23 plus equal to 46 chromosome, which is the normal number of chromosome in human being. ओके, 46 होने के बावजूद ऐसा नहीं होता कि फिर उसका डबल हो जाएगा, बराबर है, वो उतने का उतना ही मेंटेन रहता है, क्योंकि माता पिता दोनों में से बराबर है जो संतति को जो प्राप्त होता है वो 23 यानी कि क्या बोलते हैं, अगर टोटल 46 है तो दोनों में से जो है एक एक जोड़ी क्रोमोसोम्स जो है डेवलप होते हैं और नए ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करने में, नए सेल को डेवलप करने में मदद करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में जो अगला है दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पहले हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे और फिर ह्यूमन बीइंग को, ये इतना हम लोग जो है वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय, सी यू, दिस इज इनफ फॉर टुडे। आप लोग इतना अंडरस्टैंड करना, बिकॉज आपके बुक में बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस दिया हुआ है, इसलिए मैंने बहुत इसको इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर आप बुक से देखोगे तो मेरे वर्डिंग्स और वहाँ पे कुछ मैच मैकिंग नहीं मिलेगा आपको, तो आप ये मत सोचना सर ये कहाँ से पढ़ा रहा है, लेकिन वो बुक को ही मैंने और ज़्यादा ईजी करने की कोशिश की है, सो दैट व्हेन यू कीप इन योर माइंड एंड देन यू रीड द बुक, सो यू विल गेट द सिमिलरिटी इन दैट। ओके, बाय, सी यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।